Good morning, friends. Welcome to my 12th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding geometric mean. I have told that geometric mean is the nth root of the product of n item. It means the items given are to be multiplied and we have to calculate its nth root to find out the geometric mean. In our previous class, we have discussed how to compute geometric mean in case of individual series, discrete series, and continuous series by using log and antilog. Next, we have discussed how to compute weighted geometric mean and combined geometric mean. In today's class, we will focus on the uses, the merits, the demerits of geometric mean. And we will also solve some typical problem on geometric mean. So before discussing the uses, merits, demerits, let me first share my screen with you. Then we will discuss. Kindly give me 1 minute, please. Let me share my screen. Okay. Okay, friends. So we will discuss regarding geometric mean. So first we will discuss what are the uses or application of geometric mean. One minute. Okay, friends. Let me put the PowerPoint. Okay, friends. So first we will discuss regarding the uses of geometric mean. What are the situations where geometric mean shall be used? Okay. First point is geometric mean is used to find out the average percentage increase or average percentage decrease. It means geometric mean is applicable in those situations where the variables will be given in term of percentage increase or percentage decrease. If the variables are given in this term, in order to calculate average percentage increase or average percentage decrease, we have to use which mean geometric mean. So point number one, geometric mean is used to calculate average percentage increase or average percentage decrease in any phenomenon. The phenomenon can be sales. Let's take an example. Suppose in your company the sales is increasing in first year by 10%, second year by 20%, and third year by 30%. And we have to calculate what is the average percentage increase in sales. So in this case, we have to use geometric mean. Very often people use arithmetic mean here, but these are not 10, 20, 30. These are 10% increase on what? On sales figure. Every year, the sales figure are different. They are not same. Therefore, these are not comparable. So 10%, 20, 10% increase, 20% increase, 30% increase cannot be added and divided by 3 to find out the average. If you will use arithmetic average here, the concept will be wrong.
In this case, in order to calculate the average percentage increase, you have to use geometric mean. Similarly, percentage increase or percentage of decrease in profit. Suppose percentage increase or percentage decrease in population. Suppose in 2018, population increased by 10%. In 2019, population increased by 15%. And in 2020, the population of India increased by 20%. And we have to calculate what is the average percentage increase or decrease. Please see, every year the population amount is not same. Every year the population is different. Whatever population is there at the beginning, there is 10% increase. Whatever population at the beginning in 2000 increase, there is 15% increase. Whatever population is in the beginning of 2020, there is 20% increase. All these three figures are not same. So in this case, 10% increase, 15% increase, 20% increase, if you want to calculate average percentage increase over these 3 years, you cannot apply arithmetic mean. So in this case, you have to apply the best weight, best average to be used is geometric mean. So if you want to find out average percentage increase or average percentage decrease of any phenomenon, it may be sales, it may be profit, it may be population. So in that case, we have to use what? Geometric mean. Similarly, first point over. Second point, where we have to use geometric mean. Geometric mean is used for construction of index number. But what is index number? Now, index number एक statistical technique है. It represents the change of a particular phenomenon over the years in comparison to base year. Suppose there is a rice index. So rice index shows the movement of change of rice price over different years. Suppose the base year is 2018, the rice price was 20 and the base value is taken as 100. So this is index. Suppose in the second year 2019, the rice price becomes 24. So what will be the index value? Index value will be 24 by 20 into 100. That is called to 120. Similarly, in 2020, suppose the rice price becomes 26. So what is the index value? Index value will be 26 by 20 into 100. That is called to 130. So index values, rice index value is 100, 120, 130 like this. It's ka matlab, suppose what is the rice index? Rice index is equal to 2018 का राइस इंडेक्स कितना आया 100. दिस इज द बेस ईयर. 2019 का राइस इंडेक्स कितना आया 120. 2020 का राइस इंडेक्स कितना आया it is coming 130. So these 100, 120, 130 are not absolute figures. 100, 120 tells that there is 20% increase in a rice value in comparison to base year. 130 represent there is 30% increase in rice value in comparison to base year. So for construction of index number, the best average used is geometric mean. So geometric mean कहाँ पर अप्लाई होता है? पहला बताया, पहला एप्लीकेशन होता है कहाँ पर? जब हम क्या करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं, उस केस में ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होता है. सेकेंड में बताया, जब हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं तो क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करते हैं. थर्ड, टू फाइंड आउट CAGR. व्हाट इज CAGR? Compounded annual growth rate. So suppose in 3 years the growth rate is given. Growth rate is given. Year 1 growth rate is 8%. Year 2 growth rate is 9%. Year 3 growth rate is 10%. We have to calculate the compound growth rate.
compound growth rate or CAGR. For computation of CAGR, we also use geometric mean. So we have discussed geometric mean has three important applications. First application, for finding out percentage increase or percentage decrease, we apply geometric mean. Second application, for construction of index number, we apply geometric mean. Third, for computation of CAGR, compounded annual growth rate, we use geometric mean. These are the three major areas where geometric mean is used. Now we will solve some problem on application of geometric mean. Okay. Example number 1. We will solve example number 1. Okay. What is example number 1? What is this given? The price of a commodity is increased by 10% in first year. So what is the price increase in first year? 10%. Now please see, there is 10% increase. तो जब भी मैं बताया था परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के केस में आप कौन सा मीन लगाएंगे? ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे. सो इन फर्स्ट ईयर देयर इज 10% इंक्रीज. सिमिलरली 20% increase in which case? In second year. And 30% increase in which year? Third year. So 3 year दिया हुआ है, percentage increase of price दिया हुआ है. We have to calculate what? Average rate of increase. So जब भी हम average rate of increase लगाते हैं, निकालते हैं, तो कौन सा average निकालते हैं? Geometric mean लगाते हैं. तो लिखेंगे पहला point number 1. So here we have to apply what? Geometric mean. So in order to compute average percentage increase or decrease, we have to apply which mean? Geometric mean. बेटा समझ में आ रहा है? जब भी हम एवरेज परसेंटेज इंक्रीज या एवरेज परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं तो कौन सा मीन लगाते हैं? ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं. ठीक है. Now we will find out how to compute what is the average percentage increase or decrease. Now please see. So year is given. Year is given. Next, percentage increase or decrease is given. Percentage increase is given. So now year is 1, 2, 3. What is the first year में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? 10%. सेकेंड ईयर में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? 20%. थर्ड ईयर में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? 30%. नाउ ये जो 10% इंक्रीज हुआ है फर्स्ट ईयर में किसके ऊपर? पता नहीं. ये जो सेकेंड ईयर में 20% इंक्रीज हुआ है किसके ऊपर? पता नहीं. ये जो 30% इंक्रीज हुआ है थर्ड ईयर में किसके ऊपर? पता नहीं. तो एक असम्पशन ले लेंगे. सपोज हर साल के बिगिनिंग में 100 है. समझ में आ गया? तो व्हाट वी अज्यूम? वी अज्यूम बिगिनिंग फिगर of every year
इज इक्वल टू 100। सपोज हर साल का बिगिनिंग फिगर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो बेटा समझ में आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या असम्पशन लिया, यहां पर 100 है, यहां पर 100 है, यहां पर 100। अगर फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ा है तो एंड में कितना होगा, तो अभी निकालेंगे फिगर एट द एंड, फिगर एट एंड। बेटा फिगर एट एंड कितना होगा, 100 था, 10% इंक्रीज हुआ तो एंड में हो जाएगा 110। सिमिलरली यहां पर 100 था, 20% इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा फिगर एट द एंड, 120। सिमिलरली यहां पर 100 था, 30% इंक्रीज हुआ तो कितना फिगर हो जाएगा, 130। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है क्या? सो दीज आर द फिगर्स, द फिगर एट द एंड इज द एक्स वैल्यू। ये फिगर एट द एंड का हमको क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। क्योंकि हम लोग वेरिएबल का निकाल सकते हैं, ये परसेंटेज 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 30% इंक्रीज का क्या नहीं निकाल सकते हैं, हम एवरेज नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हम सोचे हर साल के बिगिनिंग में 100 था और वो 10% बढ़ा 110 हो गया, 20% बढ़ा 120 हो गया, 30% बढ़ा 130 हो गया। अभी हमको क्या करना है, ये जो एक्स वैल्यू मिल गया है, दिस इज आवर वेरिएबल, इसका हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो देखेंगे इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। बेटा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और निकल जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, ओके हमको पता है जीएम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स बाई एन, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अभी x दे दिया है, अभी हमको log x निकालना है, तो निकालो log x। बेटा log x कितना होगा फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में होगा log 110। सेकेंड केस में कितना होगा log 120। थर्ड केस में कितना होगा log 130। इन सबका लॉग वैल्यू निकालेंगे। बेटा इसका लॉग वैल्यू कितना होगा, लॉग वैल्यू कैसे देखते हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। देखेंगे 110 कितने डिजिट का फिगर है, 3 डिजिट का, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 2 पॉइंट। ये 3 डिजिट का, ये हो गया 2 पॉइंट। ये थर्ड वाला 3 पॉइंट है 130, तो ये हो गया 2 पॉइंट। फिर लॉग टेबल में वैल्यू देखेंगे, फर्स्ट 110 का वैल्यू, लॉग टेबल देखो वैल्यू आता है, कैसे देखेंगे 11 का 0, लॉग टेबल में वैल्यू आता है 0414। सेकेंड 12 का 0, 12 का 0 आता है 0792। नेक्स्ट 13 का 0, 13 का 0 आता है कितना 1139। बेटा यहां तक आ गया। नाउ कैन यू कैलकुलेट समेशन लॉग एक्स, यस इसको मिला देंगे तो आ जाएगा हमारा समेशन लॉग एक्स। तो कैलकुलेट समेशन लॉग एक्स। बेटा समेशन लॉग एक्स कितना 2.0414 प्लस 2.0792 प्लस 2.1139, तीनों को मिला दो आता है 6.2345। अभी इसका लॉग निकालेंगे, इसका लॉग कैसे निकालेंगे, इसको फॉर्मूला डालेंगे जीएम इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स बाई एन, ये वाला फॉर्मूला डालकर इसका लॉग अभी निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे जीएम इजिकल टू एंटी लॉग, फॉर्मूला क्या है समेशन लॉग एक्स बाई एन, ये फॉर्मूला है ना। ये जो प्रॉब्लम है इसमें एन कितना है बेटा, एन इजिकल टू नंबर ऑफ आइटम, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, एन इजिकल टू 3, बिकॉज दिस इज एन इंडिविजुअल सीरीज। एन मिल गया है, ये मिल गया है, दैट इज कॉल्ड टू एंटी लॉग
समेशन लॉग एक्स अभी यहाँ पर निकला है कितना 6.2345 6.2345 डिवाइड बाई एन, एन कितना है बेटा, एन है 3, दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग, वैल्यू कितना आता है, इसको डिवाइड करो 3 में, आता है 2.0782, दैट इज इक्वल टू, इसका एंटीलॉग देखते हैं। एंटीलॉग हमेशा बेटा किसका देखते हैं, लॉग के बाद वाला फिगर का, जिसको बोलते हैं मैंटिसा। कैसे देखेंगे, 07 का 8 मीन डिफरेंस 2, तो 07 का 8 कितना है, 07 का 8 देखो, 07 का 8 अगर तुम देखोगे किसमें, एंटीलॉग टेबल में, इसका वैल्यू आता है 1197, मीन डिफरेंस 2 का आता है 1, तो वैल्यू कितना आता है 1198, ये है एंटीलॉग वैल्यू। एंटीलॉग टेबल से वैल्यू आया कितना 1198, अभी लिखेंगे वैल्यू 1198, लेकिन अभी हमको फिगर बिठाना है बेटा। कितने में के बाद पॉइंट बिठाएंगे, देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में कितना लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 है, 2 में से 1 मिलाएंगे, 2 + 1 हो गया 3, तो इस साइड से 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट देंगे, 1 2 3, तो ये हो गया 119.8, तो जीएम आ गया 119.8। बेटा हमारा वैल्यू एट द बिगिनिंग कितना था, 100 था, और वैल्यू कितना अभी हो गया जीएम 119.8, इसका मतलब 100 वाला फिगर कितना बन गया है 119.8 ऑन एन एवरेज बन गया है। तो व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज, 100 कितना बन गया 119.8, तो लिखेंगे therefore the average rate of increase is equal to the average rate of increase is equal to, कितना होगा एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज, देखेंगे कितना था कितना बना, इसको थोड़ा देखो याद रखो, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज, अच्छा कितना था 100 बिगिनिंग में हम लिए थे, बिगिनिंग फिगर हम असम्पशन लिए थे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में फिगर है 100, और ये 100 वाला कितना बन गया 119.8, तो एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इज इक्वल टू 119.8 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 19.8। इसका मतलब आपका फिगर कितना परसेंट ऑन एन एवरेज कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 30% इंक्रीज का एवरेज है, ऑन एन एवरेज 19.8% इंक्रीज। व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज 19.8, तो आपका आंसर कितना आया 19.8, सो आंसर इसका आ गया 19.8, so there is a 19.8 percentage increase on an average for 3 years, over 3 years, over 3 years, 3 year का फिगर में 19.8% इंक्रीज हुआ है, दिस इज आवर आंसर। बेटा समझ में आ रहा है क्या, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन कहां पर यूज होता है, पहले मैं बताया ज्योमेट्रिक मीन वहां पर यूज होगा जहां पर परसेंटेज इंक्रीज देगा या परसेंटेज डिक्रीज देगा। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज केस में आपका ज्योमेट्रिक मीन यूज होगा। तो वहां पर क्या करेंगे, पहला वाला हर ईयर का फिगर को 100 ले लेंगे, 100 लेकर जितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो वाला फिगर निकाल देंगे। जैसे 10% इंक्रीज यहाँ पर है तो ये हो गया 110, 20% इंक्रीज है 120, 30% इंक्रीज है 130, और ये जो बढ़ा हुआ फिगर अभी आ गया इसको हम x लेंगे, फिर इसका log x निकालेंगे, फिर इसी का हम लॉगरिथम निकाल देंगे, जीएम निकाल देंगे। जीएम आ गया, जितना जीएम आ जाएगा उससे कितना माइनस कर देंगे, बिगिनिंग वाला फिगर। बिगिनिंग वाला फिगर हर साल में कितना लिए थे 100 लिए थे, वासुमसन लिए थे, तो 100 माइनस कर दिए, जितना वैल्यू आया वो वैल्यू हो गया एवरेज परसेंटेज इंक्रीज और एवरेज परसेंटेज डिक्रीज। ये एवरेज परसेंटेज इंक्रीज का एक फॉर्मूला कर दिया, एक प्रॉब्लम कर दिया। दिस प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग एवरेज परसेंटेज इंक्रीज।
अभी हम सेकेंड प्रॉब्लम करेंगे एवरेज परसेंटेज डिक्रीज के ऊपर। ओके, सो एग्जांपल नंबर 2। अभी करेंगे एवरेज परसेंटेज डिक्रीज के ऊपर। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले पढ़ेंगे। ए मशीन डेप्रिसिएट्स 10% इन द फर्स्ट ईयर। इसका मतलब एक मशीन है जो डेप्रिसिएट होता है कितना परसेंट, 10% डेप्रिसिएट होता है। कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर में। डेप्रिसिएट का मतलब क्या है, मशीन का वैल्यू को गिरने को बोलते हैं 10% डिप्रिसिएशन। और ये डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कितना है, 10%। अच्छा, इसका मतलब मशीन का वैल्यू अगर 100 है बिगिनिंग में, एंड में कितना हो जाएगा, 10% गिर जाएगा। गिर जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, 100 का 10 हो गया, 90 हो जाएगा। अच्छा, इन द सेकेंड ईयर इट्स डेप्रिसिएट्स बाय 20%। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में 10% गिरा है, लेकिन सेकेंड ईयर में जो वैल्यू बचा है उसके ऊपर 20% गिर गया। समझ में आ गया। एंड थर्ड ईयर जो वैल्यू बचा है उसके ऊपर और मशीन का वैल्यू गिरा, जिसको बोलते हैं 30% गिरा है। इस तरह का डेप्रिसिएशन चार्ज को बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, जब डेप्रिसिएशन बचा हुआ वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में एक कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। फर्स्ट ईयर उसका वैल्यू कितना गिरता है, 10% गिरता है। सेकेंड ईयर वैल्यू कितना गिरता है, 20% गिरता है। थर्ड ईयर वैल्यू कितना गिरता है, 30% गिरता है। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज डिक्रीज। तो यहां पर क्वेश्चन क्या निकालना है, एवरेज परसेंटेज डिक्रीज। बेटा एवरेज परसेंटेज इंक्रीज या एवरेज परसेंट डिक्रीज में कौन सा एवरेज यूज होता है, ज्योमेट्रिक मीन। तो यूज द एवरेज टू बी यूज्ड इज इक्वल टू, कौन सा एवरेज यूज होगा, एवरेज टू बी यूज्ड इज इक्वल टू कौन सा मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां पर हम कौन सा मीन यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। क्या करेंगे, हमको बताया है पहले वैल्यू ऑफ द बिगिनिंग। लेट्स एज्यूम एवरी ईयर बिगिनिंग वैल्यू इज इक्वल टू 100। तो लिखेंगे अभी क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ईयर, नेक्स्ट परसेंटेज डिक्रीज, नेक्स्ट लिखेंगे एंड वैल्यू। ये एंड वैल्यू को हम क्या लेंगे, एंड वैल्यू को हम एक्स लेंगे, एक एंड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर निकालेंगे। बेटा ईयर कितना है, ईयर है 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट, 10% डिक्रीज हुआ है। सेकेंड ईयर में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, 20% डिक्रीज हुआ है। थर्ड ईयर में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, थर्ड ईयर में 30% डिक्रीज हुआ है। बेटा फर्स्ट ईयर में वैल्यू कितना था, यहाँ पर बिगिनिंग में कितना वैल्यू था, तो बिगिनिंग वैल्यू हमको पता नहीं है। तो बिगिनिंग वैल्यू को सपोज लेते हैं, यहाँ पर था 100, तो यहाँ पर था 100, तो यहाँ पर था 100 बिगिनिंग वैल्यू। तो 100 तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, 10% डिक्रीज हुआ। तो 100 का 10% डिक्रीज हुआ तो कितना बचा, 90 बचा। अच्छा 100 था, 20% डिक्रीज हुआ, कितना बचा, 80 बचा।
अच्छा 100 था, 30% डिक्रीज हुआ, कितना बचा? 70 बचा। तो दीज आर दी एक्स वैल्यूज। अभी ये एक्स वैल्यू के ऊपर हम क्या निकालेंगे? ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। तो अभी हम इसका log x निकालते हैं। ठीक है, तो पहले log x निकालेंगे, फिर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे। ठीक है, तो अभी निकालेंगे log x। तो बेटा log x कितना होगा फर्स्ट केस में? log 90, फिर होगा log 80, फिर होगा log 70। log 90 का वैल्यू कितना है निकालेंगे, 80 का वैल्यू कितना है, 70 का वैल्यू। बेटा यहाँ पर पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ये कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा? 1। ये भी 2 डिजिट वाला है सेकंड केस में, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स 1। ये भी थर्ड केस में 2 डिजिट वाला, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1। तो 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट। फिर क्या करेंगे? इन सबका क्या लिखेंगे? इन सबका नेक्स्ट हम लिखेंगे, लॉग दिया हुआ है, लॉग वैल्यू देखेंगे। 90 का लॉग वैल्यू कितना है? 90 का लॉग वैल्यू है 9542। अच्छा 80 का जीरो देखेंगे लॉग वैल्यू, लॉग टेबल में इसका वैल्यू आता है 9031। फिर 70 का देखेंगे, 70 का जीरो लॉग वैल्यू 8451। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट summation log x। कैलकुलेट summation log x। summation log x, summation log x मतलब इसका टोटल आता है 5.7024। अभी इसका जीएम निकालेंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला डालकर जीएम निकालेंगे। तो जीएम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? एंटी लॉग समेशन log x बाई n, दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग। बेटा समेशन log x यहाँ पर निकला है, कितना समेशन log x है? समेशन log x ये है 5.7024, 5.7024 डिवाइड बाई n। n कितना है बेटा? n कितना है? 1 2 3, n इज इक्वल टू 3। इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो n इज इक्वल टू 3। इसका एंटी लॉग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, इसका वैल्यू निकालो 5.7024 बाई 3, 5.7024 बाई 3, इसका वैल्यू आता है 1.9008। बेटा इसका अभी एंटी लॉग वैल्यू निकालेंगे। एंटी लॉग वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो एंटी लॉग टेबल में जाएंगे, एंटी लॉग टेबल देखकर वैल्यू निकाल देंगे। एंटी लॉग टेबल में कैसे देखते हैं? एंटी लॉग हमेशा किसका देखते हैं? मांटिसा का, पॉइंट के बाद वाला फिगर का। तो अभी देखेंगे 90 का जीरो, मीन डिफरेंस 8। बेटा 90 का जीरो आता है आपका 7943। ये कौन सा वैल्यू है? एंटी लॉग। और मीन डिफरेंस आ गया आपका कितना? मीन डिफरेंस 8 का वैल्यू आता है 13, तो वैल्यू आता है 7956। तो दैट इज इक्वल टू, एंटी लॉग निकालेंगे, कितना आता है? तो वैल्यू आता है 7956, लेकिन अभी पॉइंट बिठाएंगे। कहां पर पॉइंट बिठेगा देखेंगे, देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स है 1, तो 1 के ऊपर 1 मिलाओ, 1 + 1 2, तो इस साइड में 2 छोड़कर बिठाओ, तो इस साइड में 2 छोड़ो, तो कितना है? 1 2 मतलब 79.56। तो इसका जीएम इज इक्वल टू आ गया, जीएम कितना? 79.56। इसका मतलब आप बिगिनिंग में वैल्यू कितना लिए थे? बिगिनिंग में आप वैल्यू लिए थे 100। वो 100 का वैल्यू गिरकर आपका कितना हो गया? कितना हो गया है? वो एवरेज में गिरकर उसका वैल्यू हो गया 79.56। तो ऑन एन एवरेज कितना गिरा है? कैन यू कैलकुलेट परसेंटेज डिक्रीज और एवरेज परसेंटेज डिक्रीज? तो 100 से 79.56 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। तो लिखेंगे एवरेज परसेंटेज, देयरफॉर
एवरेज परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू, कितना था बेटा, 100 था, और वो गिरकर बिगिनिंग में हमेशा 100 लिए थे, और वो वैल्यू कितना हो गया 79.56, 100 माइनस 79.56 दैट इज इक्वल टू कितना 20.44। तो दिस इज योर आंसर। आंसर कितना है 20.44। इसका मतलब आपका एवरेज परसेंटेज डिक्रीज कितना है 20.44। देयरफॉर ऑन एन एवरेज there is 20.44 percentage decrease over 3 years। 3 साल में परसेंटेज डिक्रीज कितना है ऑन एन एवरेज 20.44। दिस इज योर आंसर। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो मैं अभी दो सिचुएशन पढ़ लिए। ज्योमेट्रिक मीन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज एंड इन केस ऑफ परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज के केस में या परसेंटेज डिक्रीज के केस में आप क्या यूज कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं। अभी देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एक इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन करेंगे अभी। एग्जाम्पल नंबर 3, ये इंडेक्स नंबर के ऊपर करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहले पढ़ेंगे। फाइंड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, क्या निकालने के क्वेश्चन बोल रहा है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट इज वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, हम बहुत पहले पढ़ दिए हैं। वेटेड GMW इज इक्वल टू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, एंटीलॉग समेशन W log X डिवाइड बाय समेशन W। ये फॉर्मूला डालना है। बेटा समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। मैं कल के क्लास में पढ़ाया है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्या क्या डाटा दिया हुआ है, सब आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, एजुकेशन, दीज आर द गिवन्स। इंडेक्स नंबर मैं बताया था, इंडेक्स नंबर क्या है, इसका मतलब फूड बेस ईयर के हिसाब से कितना गुना हो गया है, 2 गुना हुआ है, इसीलिए इसका इंडेक्स नंबर कितना दिया हुआ है 200। द इंडेक्स नंबर विल बी आवर एक्स। ओके, सो ये 200 है, ये 150 है। 150 का मतलब 150 नहीं है, इसका मतलब बेस ईयर के हिसाब से क्लॉथिंग 50% महंगा हो गया है। नेक्स्ट, हाउस रेंट का 300 का मतलब 300 नहीं है, इसका मतलब बेस ईयर के हिसाब से हाउसिंग वाला हाउस रेंट 3 गुना महंगा हो गया है। एजुकेशन है 120, इसका मतलब 120 नहीं है, इसका मतलब बेस ईयर के हिसाब से एजुकेशन का पैसा 20% बढ़ गया है। तो दीज आर द फिगर्स इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के केस में एवरेज निकालने के टाइम में सबसे अच्छा एवरेज मैं बताया था, कौन सा एवरेज है, ज्योमेट्रिक में। ओके, सो x is given, next, and its weight is given, weight means W is given, so x value is given, W value is given. Now we will apply the formula and find out the weighted geometric mean. Weighted geometric mean is equal to summation Wx divided antilog summation Wx by summation W। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करें। ओके बेटा, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। पहले लिखेंगे फूड,
ओके, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, व्हाट इज आइटम? पहले लिखेंगे आइटम्स, आइटम्स फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, third one is education, next one is education. These are the item. Okay, items are given. Next, index number. Index number को हम लेंगे क्या? X. What is index number? X. X value is given. What is index number? Index number कितना है? फर्स्ट केस में फूड का है 200. नेक्स्ट, क्लॉथिंग का कितना है? क्लॉथिंग का है 150. नेक्स्ट, हाउस रेंट का कितना है? हाउस रेंट का 300. नेक्स्ट, एजुकेशन का कितना है? एजुकेशन का 120. नाउ नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट log x. x वैल्यू इज गिवन, log x हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. और w इज गिवन. सो व्हाट इज वेट? वेट मींस w. वेट्स आर गिवन. वेट मींस इंपोर्टेंस. सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आइटम उस आदमी के लिए कौन सा है? फूड, इसीलिए सबसे ज्यादा वेट है. नेक्स्ट वाला इंपोर्टेंट आइटम कौन सा है? क्लॉथिंग, इसीलिए 3 दिया हुआ है. अच्छा, हाउस रेंट का वेट कितना है? उससे कम है 2. सबसे कम उसके लिए इंपोर्टेंस कौन सा है? एजुकेशन. सो व्हाट इज द सम टोटल ऑफ वेट? सम टोटल ऑफ वेट इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 3 7 2 9 1 10. ये सब वैल्यू पहले उतार दिए. फिर धीरे धीरे क्या करेंगे? log x निकालेंगे, फिर w log x निकालेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और वेटेड मीन निकालेंगे. तो वेट दे दिया है, तो अभी अब फास्ट हम निकालते हैं log x. बेटा log x निकालते हैं. log x कैसे निकालेंगे? log x इज इक्वल टू, पहले डालेंगे log x का वैल्यू कितना है? 200. x दिस फिगर्स, इंडेक्स नंबर इज x, log 200. सेकेंड, log 150. नेक्स्ट आएगा log 300. नेक्स्ट आएगा log 120. बेटा इन सब का log वैल्यू निकालेंगे. बेटा log वैल्यू पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर हम इन सब का निकालेंगे log वैल्यू. तो पहले देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना दिया हुआ है. ओके, पहले log 200 का निकालेंगे, फिर log किसका निकालेंगे? log 150 का निकालेंगे, फिर log 300 का निकालेंगे, फिर log 120 का निकालेंगे. फिर हम क्या करेंगे? समेशन wx बाई समेशन w, ये वाला फॉर्मूला डालकर इसका वैल्यू हम निकालेंगे. ठीक है. ओके, तो पहले इन सब का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं. पहले फर्स्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा बेटा? log 200. इसका ये वाला फिगर कितना है? 2. log 150, ये 3 फिगर वाला है तो 2. 2 पॉइंट. हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, ये 300 है, इसका 2 पॉइंट. log 120, ये 3 फिगर वाला 2 पॉइंट. फिर देखेंगे 20 का 0. 20 का 0 कितना है? 20 का 0 है, 20 का 0 आप देखेंगे 30, log वैल्यू 10. अच्छा, इसका वैल्यू कितना आएगा? log 150 का, log 150 का वैल्यू कितना आता है? 2 पॉइंट. ओके, 15 का 0, 15 का 0 है 1761. 300, 30 का 0, 30 का 0 आता है 4771. नेक्स्ट 12 का 0, 12 का 0 बेटा कितना आता है? 12 का 0 आएगा आपका, 12 का 0 आ जाएगा 1.0792. सो दीज आर द वैल्यूज. ओके, इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, log x निकल गया. फिर अभी क्या करेंगे? w log x. व्हाट इज w log x? आपको वेट को log x में मल्टीप्लाई करना है. w वैल्यू इज गिवन, log x वैल्यू इज गिवन. वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस w log x. सो w इज 4, वेट इज 2.3010. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल यूज आवर कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट समेशन w log x. ओके, फास्ट देखेंगे. फास्ट कितना दिया हुआ है?
ओके, कैलकुलेटर लगाएंगे, देखेंगे फर्स्ट दिया हुआ है 4, 4 इंटू 2.30 कितना आता है बेटा, दैट इज इक्वल टू 9 पॉइंट, वेट को मल्टीप्लाई करो, 9.204, 9.2040। अच्छा, सेकेंड केस 3 इंटू, तो देखेंगे 3 इंटू कितना आता है, 2.1761, that is equal to how much, 6.5283। नेक्स्ट आएगा इसका 300 का, 300 का कितना आएगा, 300 का देखते हैं तो वैल्यू कितना आता है, तो ये आ जाएगा 2 का वेट है 2, ये है 2.4771, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2.4771, दैट इज इक्वल टू कितना, 4.95, 4.9542। नेक्स्ट वन 1 into 2.0792, that is equal to 2.0792। अभी हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करो, इसको ऐड करने से आ जाएगा आपका समेशन W log x। बेटा समेशन W log x कितना आता है, इन सबको ऐड कर देंगे, तो व्हाट इज द ऐड करने से फिगर कितना आता है, फिगर है 9.2040 प्लस 6.5283 प्लस 4.9542 प्लस 2.0792, दैट इज इक्वल टू आपका वैल्यू आता है 22.7657, 22.7657। सो दिस इज योर समेशन W log x। अभी इसका क्या निकालेंगे, जीएम निकालने की कोशिश करेंगे, तो जीएम का फॉर्मूला क्या है, तो जीएम इजिकल टू, फॉर्मूला डालेंगे, जीएम इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है, जीएम इजिकल टू एंटी लॉग समेशन W log x डिवाइड बाय समेशन W, that is equal to anti-log समेशन W log x कितना है बेटा, 22.7657 डिवाइड बाय समेशन W, समेशन W कितना है 10, दैट इज इक्वल टू एंटी-लॉग, किसका एंटी-लॉग निकालेंगे, एंटी-लॉग निकालना पड़ेगा, सो 2.2766, 4 फिगर तक लेंगे, 2.2766, ये 5 7 हो गया, 6 कर लेते हैं, 2.766। अभी इसका एंटीलॉग देखते हैं, बेटा एंटीलॉग कैसे देखा जाता है, एंटीलॉग हमेशा मैंटिसा फिगर का देखा जाता है। बेटा मैंटिसा वाला फिगर कौन सा है, मैंटिसा वाला फिगर ये है, ये वाला। तो अभी देखेंगे मैंटिसा 27 का 6, मीन डिफरेंस 6। बेटा एंटीलॉग टेबल जाओ, तो एंटीलॉग टेबल, एंटीलॉग टेबल, एंटीलॉग टेबल में पहले देखेंगे कितना, 27 का 6, बेटा 0.27 का 6 का वैल्यू कितना आता है, 0.27 का 6, 6.27 का 6 का वैल्यू आता है 1888, 0.27 का 6 का वैल्यू आता है 1888। मीन डिफरेंस 6, 0.27 का 6 और मीन डिफरेंस 6, मीन डिफरेंस 6 का वैल्यू आता है 3। बेटा कितना आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आता है 1891,
इसका वैल्यू कितना आता है 1891, 1891 इसका वैल्यू आता है। तो वैल्यू आ रहा है इसका 1891। अगर इसका वैल्यू 1891 आता है तो आपको अभी देखना पड़ेगा, आपको क्या 1891 आ गया इसका वैल्यू, तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में कितना लिखा हुआ है 2, तो 3 फिगर के बाद यहां से 3 फिगर छोड़कर पॉइंट बिठाएंगे, फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर, तो कितना वैल्यू आता है 189.1। दिस इज एंटी लॉग फिगर, तो आपका वैल्यू आ गया एंड दैट इज कॉल्ड टू 189.1। तो जीएम कितना आया 189.1। तो लिखेंगे जीएम इजिकल टू GM is equal to 189.1। सो इसीलिए अभी इसका लिखेंगे आंसर क्या होगा, therefore the average, the weighted average of the index number is 189.1। इसका मतलब ऑन एन एवरेज देयर इज 89% इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ऑल द 3 गुड्स। ओके, सो अभी हम देखेंगे आज के क्लास में क्या पढ़े, उसका एक समरी बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे समरी। व्हाट इज द समरी ऑफ टुडेस क्लास? लिखो समरी ऑफ टुडेस क्लास। क्या क्या समरी है? तो पहले पढ़े जीएम कहां पर एप्लीकेबल होता है। पॉइंट नंबर 1, जीएम और ज्योमेट्रिक मीन shall be applied in the following cases। क्या क्या केस है, जीएम कहां पर अप्लाई होता है? पहला हम पढ़े इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एवरेज इंक्रीज, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज, टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज, दैट इज परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज। तो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज निकालने के टाइम में हम जीएम यूज करते हैं। सेकेंड, एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज, जब हम परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जीएम यूज करते हैं। थर्ड, हम जीएम कहां पर यूज करते हैं? इन केस ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर जब बनाते हैं तो जीएम यूज करते हैं। फोर्थ, हम बताया था जीएम कहां पर यूज होता है? जीएम इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ CAGR। व्हाट इज CAGR? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालने के टाइम में भी हमारा जीएम यूज होता है। तो जीएम का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज इंक्रीज में होता है, परसेंटेज डिक्रीज में होता है, इंडेक्स नंबर में होता है, CAGR कैलकुलेट में होता है। दिस इज द समरी ऑफ टुडेस क्लास। ओके, इसको अभी पहले लिख दो। ओके, सो बिफोर, तो जीएम का बाद में हम पढ़े कहां कहां पर जीएम यूज होता है। ओके, सो जीएम
कैलकुलेट करते हैं हम कहां पर, 4 केस में। क्या क्या 4 केस है? परसेंटेज इंक्रीज, फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीज के केस में हम जीएम को यूज करते हैं। नेक्स्ट कहां पर यूज करते हैं जीएम को? परसेंटेज डिक्रीज के केस में हम जीएम को यूज करते हैं। नेक्स्ट कहां पर यूज करते हैं जीएम को? परसेंटेज इंक्रीज में यूज करते हैं, परसेंटेज डिक्रीज में यूज करते हैं। और कहां पर जीएम को यूज करते हैं? हम यूज करते हैं जब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, तब हम जीएम को यूज करते हैं। और लास्ट में मैं बताया जीएम कहां पर यूज करते हैं? जीएम हम यूज करते हैं कहां पर? जब CAGR यूज कैलकुलेट करते हैं, CAGR का मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं, तब जीएम यूज करते हैं। तो लेट मी कंक्लूड, बिफोर कंक्लूडिंग माय सेशन, लेट मी टेल दैट इफ you have not subscribed to my channel, you can subscribe to my channel. My channel is Commerce Forum, and once you subscribe it, you have to press the bell icon to get the latest videos. And if you have still any doubt, you can contact me in my email id. My email id is biswamisra@gmail.com. Thank you for watching my videos. Thank you all.